हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है तुम लोग को? यस सर। ओके, तो टुडे इज योर फर्स्ट क्लास of engineering geology. Okay, anyone know about engineering geology? Anything? नीतू कुमारी, अनिकेत कुमार राज, अंजलि चौधरी, शुभम कुमार, मुजाहिद आलम, विशाल कुमार एंड रोहित बौरी। कितना स्टूडेंट थे तुम्हारे क्लास में? 20। कितना है नीतू? 20 सर।
20। ओके। कोई लेटरल एंट्री अभी इंटर किया है क्या? No, sir. So everyone open your video. I am giving you permission to open your video. Now everyone open your video. Ayush Anand. Yes, sir. Rohit Bauri. Sumam Kumar. And rest person, Neetu Kumari, Vishal Kumar, okay. अंजलि चौधरी, मुजाहिद आलम, अनिकेत कुमार, ओके, मुजाहिद आलम, विशाल कुमार, अनिकेत कुमार राज, अनिकेत कुमार राज, okay, turn off your video. Subham Kumar, turn off your video. Okay, now start your class, which is engineering geology, and the syllabus is this is the syllabus. 1 minute. This is third semester class, na? Yes, sir. Okay. One minute, I am showing you your syllabus. Just a minute. This is showing you all. No, sir, it is loading, still loading. I think now it is visible. Yes, sir. Okay. This is the syllabus of engineering geology in first model about introduction of engineering geology, and then second, strength behavior of different types of rock, then different types of hazards like geological hazards or different types other hazards, and heavy structures like dam and reservoir in next module. And then after
about soil mechanics. Okay. Introduction of soil mechanics and different types of analysis like soil hydraulic, seepage analysis. Okay. So this is your syllabus. So from today, I'm going to start introduction. Okay. So now everyone can give your introduction one by one because you are new for me and also I am new for you. So Subham Kumar, first of all, no. Ankit Kumar Raj first. Ankit Kumar Raj. Ankit Kumar Raj. Okay. Anjali Chaudhary. Yes, sir. Okay. Give your brief introduction. So myself, Anjali Chaudhary. Yes. I belongs to Meghatuburu Mehat. and currently Meghatuburu. Okay. Okay. And currently I am pursuing BTech. And your 10th and 10 plus 2? Sir, I have done my 10th from KV and also 12th from KV. Okay. KB. Kendriya Vidyalaya. Yes. Okay. Yes. Next is Ayush Anand. Yes, sir. Good morning, sir. Sir, my name is Ayush Kumar Anand, and I am from Patratu, Ramgarh district, and I am pursuing BTech, and I have completed my 10th from OP Jindal School, Patratu, and the 12th same school, OP Jindal School, Patratu. Okay. Mujahid Alam. Good morning, sir. Good morning. My name is Mujahid Alam, and I am from Gola Ramgarh, and I have completed my 10th from government school, and I have completed my 12th from DAV Bokaro. DAV Bokaro. I am in Charasa Engineering College. Okay. Neetu Kumari. Yes, sir. Good morning, sir. Morning. Myself, Nitu Kumari. I'm from Dhanbad. I have done my 10th from St. Thomas High School, Dhanbad, and I have completed my 12th from SS RSP College, and I am pursuing BTech. Now Subham Kumar. Yes, sir. Good morning, sir. Morning. I'm Shubham Kumar. I'm from Devghar, and I did my 10th in Modern Public School. I did my 12th in Devghar College. So it is in government college, and now I'm doing BTech in this college. Okay. No one left. Okay. I'm giving our introduction. My name is Santosh Kumar. Did our BTech from Lucknow and MTech from NIT Patna, and same college I'm doing our PhD. Now I'm pursuing PhD from same college, already said, and I have joined this college in 2015. Okay, from this time, and now I am in charge of your civil engineering department. So if you have any query in your future, so you can ask me. Okay, welcome you all. Thank you, sir. Okay, now start your class. I'm sharing PPT. Who is Anket Kumar Raj? Yes, sir. Good morning, sir. Morning. Give your introduction.
Sir, myself, Aniket Kumar Raj. First of all, you Currently, I am at turn on your video. I want to see you. Sir, 1 second, sir. Because this is your first class, so I want to see you. Sir, mobile से join हो रहे sir, laptop में No problem. नहीं हो रहा। You can turn on your video. Good morning, sir. Okay. Morning. Give your introduction. Sir, myself, Aniket Kumar Raj. I studied my 10th and 12th from Sainik School Tilaiya. Okay. Okay, very good. You can close your video. Yes. इसमें से कोई भी कुछ दूसरा भी कोर्स कर रहा है बीटेक के अलावा? If any person doing No, sir. any other course? Yes, Mujahid Alam, you want to say something? No, sir. Okay, start your class. Sir, are we permitted to do 2 courses at same time? Not courses. You can do any distance course with your BTech. Okay. For example, sir? So for example, you can do CCC. Okay. Doc. Many courses are there you can do. Like diploma, O-level diploma. Okay. CAT. Okay. From IGNU, sir. Not from IGNU. You can do from anywhere. Okay. Sir. Any other query? No, sir. I'm sharing one PPT. This is visible to all? Yes, sir. Geology. Geology means? What is the meaning of geology? Study of Earth. Study of Earth. Very good. And? Study of Earth, or you can say study of environment with related to Earth. Okay. जियोलॉजी में बहुत सारा चीज हम पढ़ सकते हैं अबाउट अपना अर्थ के बारे में भी और इन्वायरमेंट के बारे में एंड हैवी स्ट्रक्चर के बारे में, देन बहुत सारा हैजार्ड्स होता है जो बहुत कॉस्टली जो भी मींस बिल्डिंग बनता है या फिर कुछ हम असेसमेंट करते हैं किसी चीज के बारे में, उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं. ओके. अर्थ के बारे में मेनली हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम अपना एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस अगर मैं अननोन प्लेस पे चला गया हूं तो मुझे क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट ये होगा प्लेस कैसा है, अनइवन प्लेस तो नहीं है, ठीक है. फिर क्या करेंगे, हम फाउंडेशन का सोचेंगे उस पर कि कैसा फाउंडेशन हम बना सकते हैं. यहाँ पे पहले उसका वहां पे जो सॉइल होगा उसका कंडीशन देखेंगे, टेस्टिंग करेंगे सॉइल का कि कैसे हम वहां पे कितना लोडिंग दे सकते हैं
अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा कि मैं 3 बिल्डिंग का बनाऊं, मीन्स 3 फ्लोर का बनाऊं, 4 फ्लोर का बनाऊं, बट मेरा सॉइल जो है उसका कैपेसिटी उतना, बियरिंग कैपेसिटी उतना हाई नहीं है, तो उसके लिए भी टेस्टिंग करना पड़ेगा। देन अगर मैं बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, किसी में रॉकी एरिया में चला गया, पहाड़ी इलाके में, ठीक है, तो वहां पे क्या करूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे जो भी रॉक प्लेस है कैसा कंडीशन है उसका, मीन्स रॉक हमारा इवन है कि अनइवन, इवन अनइवन मीन्स होमोजीनियस प्रॉपर्टी है उसका कि नॉन होमोजीनियस है, ये देखना होगा, ठीक है। मीन्स कहीं क्रैक तो नहीं है, कोई इंफॉर्मिटीज नहीं है, मीन्स इंफॉर्मिटी मीन्स कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, ठीक है। ये सब चीज देख के हमको वहां पे बिल्डिंग बनाना होगा, या फिर हमको रोड कंस्ट्रक्ट करना होगा, या फिर रेलवे बनाना है, ठीक है, या कोई डैम बनाना है जिससे हम अपना वाटर को रिजर्व कर सके। ये सब चीज हम लोग इसमें इंजीनियरिंग जियोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है इसका डिफिनीशन, द साइंस दैट डील विथ वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ एज ए प्लैनेट आर ग्रुप टुगेदर एज अर्थ साइंस। जियोलॉजी का अगर मैं मीनिंग देखूं तो क्या है, जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, ओके, एंड लॉगस मीन्स science, means geology is the science of earth, or we can say earth science, okay. It is the science that we deals with the study of earth as a whole, means हम अर्थ का इसमें स्टडी करते हैं, उसका एनवायरमेंट हो या फिर बीनीथ द सरफेस हो, कुछ भी है उसमें हम सब चीज का स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी कौन आंसर दिया था, स्टडी ऑफ अर्थ? हेलो सर मैं नाम बाबू बोला करो, ठीक है। बोले सर मुजाहिद। मुजाहिद आलम, वेरी गुड, ओके। इसी तरह सभी लोग कुछ किसी भी क्लास में कुछ भी आंसर दिया करो, अगर थोड़ा भी तुमको कुछ मालूम है तो, ठीक है। ऐसे शांत रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए सभी लोग अपना आंसर बताया करो। मैं भी हो सकता है आंसर तुम्हारा ना 50% ना 100% सही हो, बट 10% 20% तो सही हो ही सकता है, नहीं सही होगा तो फिर बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, स्टडी ऑफ अर्थ एज ए प्लैनेट। अब इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी रॉक को ले लो, ठीक है, रॉक कहाँ पे क्रिएशन होता है उसका, वो कितना दूरी तक आएगा, ठीक है, कितना मीन्स हाइट तक उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कैसे, जैसे सपोज मान लो कि मेरा रॉक क्रिएट हो रहा है, तो सरफेस के नीचे ही तो क्रिएट होता है, ऊपर में तो कहीं आकर क्रिएट नहीं होगा। हाँ, जब मेरा क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तब वो क्या करता है, अर्थ के ऊपर में आता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर में आया और वो सॉलिड हो गया कूल होकर, ठीक है। तो कूल होकर सॉलिड हो गया तो उसको क्या देखते हैं, इसमें क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, उसका हाइपोथेसिस निकालते हैं, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी निकालते हैं उसका, कि डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप का है कि नहीं, ठीक है। फिर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, किसी को मालूम है प्लेट टेक्टोनिक्स? हेलो हेलो, यस सर। किसी Yes, को sir. मालूम है इसके बारे में, प्लेट टेक्टोनिक? Yes, sir. बोलो। अच्छा मैं ही बताता हूँ, प्लेट टेक्टोनिक, सपोज मान लो तुम्हारा अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के अंदर में क्या है, तो बहुत सारा प्लेट्स हैं, मीन्स ये जो हमारा रॉक प्लेट्स हैं, ये अर्थ के अंदर बहुत हैं, ठीक है। अर्थ के अंदर कैसे हैं, सपोज मान लो जो तुम्हारा वाटर तुम पंप करते हो अंडर द ग्राउंड, तो क्या कहता है, वो एक लेवल तक ही होता है, उसके नीचे में क्या होता है, जो वाटर होता है वो बाउंड होता है, बाउंड मतलब मीन्स 2 लेयर से ढका हुआ रहता है। मैं तुम इतना आसानी से वाटर को प्राप्त नहीं कर सकते, मीन्स
अटेंड नहीं कर सकते। सपोज मान लो कि ये तुम्हारा झारखंड है या फिर राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, जो भी रॉकी इलाके हैं, वहां पे तुम वाटर को इजीली अवेलेबल नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां का वाटर लेवल बहुत नीचे है। बहुत नीचे मीन्स अबाउट 1000 फीट या उससे भी ज्यादा नीचे है। ठीक है, तो इतना नीचे होना होना मीन्स समझ लो कि वो 2 लेयर से बाउंड है। तो लेयर्स कौन सी है? टेक्टोनिक लेयर्स है। मीन्स वो अगर थोड़ा भी उसका मूवमेंट होता है तो क्या होता है हम लोग का? कुछ प्रॉब्लम आता है क्या अर्थ सरफेस में? earthquake, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है, एंड tsunami भी आता वोल्केनिक है। एरप्शन। सुनामी भी आता है। अर्थक्वेक है, सुनामी है, या फिर बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, सुनामी होता है तो, या फिर अर्थक्वेक होता है तो। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या होता है? डिस्टर्ब करता है अर्थ सरफेस को। तीन सभी चीज अर्थ सरफेस के डिस्टरबेंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई हैवी वाइब्रेशन नहीं करते हैं। अगर वो हैवी वाइब्रेशन करोगे तो क्या होगा? जो भी हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी, या फिर हमारा जो भी वोल्केनिक एरप्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। मीन्स वोल्केनिक एरप्शन क्या है? वो अंडर प्रेशर तुम्हारा इस अर्थ सरफेस के नीचे में दबा हुआ है। ठीक है, अगर वो थोड़ा भी तुम्हारा डिस्टर्ब हुआ, कहीं पर क्रैक पाया, कहीं पर लूज लेयर हो गई, तो क्या करेगा? वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कॉलेज भी जो भी बना हुआ है, ये कहाँ पे बना हुआ है? टॉप ऑफ द हिल बना हुआ है। तो ये कैसे क्रिएट हुआ? ये वोल्केनिक एरप्शन से क्रिएट हुआ, या फिर कहीं पे दूसरी जगह पहाड़ देखते हो? सभी लोग झारखंड से हो कि बाहर से हो? कुछ लोग झारखंड से सर। आई थिंक मोस्टली तो झारखंड से ही सभी लोग हो। कुछ लोग बिहार से भी हो क्या? उड़ीसा से? अनिकेत कुमार राज झारखंड से हो। अंजलि चौधरी तुम भी झारखंड से हो। आयुष आनंद झारखंड से हो। एमडी जिसान कौन है जी? एमडी जिसान वारिस अहमद। Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। तुम बाद में ज्वाइन किए हो? Yes, sir. थोड़ा लेट से किया हूँ सर, 10 मिनट लेट है। अच्छा, 10 मिनट लेट है। चलो ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दो। वीडियो ऑन करो। Yes, sir. Myself. 1 minute, sir. 1 minute, sir. चलो वेट कर रहे हैं 1 मिनट। एमडी जिसान वारिस अहमद। Please allow also access permission to it using the app. Yeah. Yeah. Good morning, sir. I'm Mohammad Zishan Waris Ahmed from CAC, branch civil, sir. Okay, you're 10th, 12th, and from where? Yes, sir. I have a study of my 10th class is from St. Thomas High School, Topchachi, and intermediate from the JLSM DAV College, Bhaga. And currently I'm studying in Chavasa Engineering College, and I'm from Dhanbad. Okay, from Dhanbad. Yes, sir. Very good. You can turn off your video. Okay, sir. Okay, so origin, then age by radioactivity. एज कैसे हम लोग देख सकते हैं? मींस कितना वाटर अवेलेबल है अंडर द सरफेस, या फिर मेरा कैसा बिहेवियर है रॉक का, या फिर कितना रॉक अवेलेबल है। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? मेजर कर सकते हैं बाय रेडियो एक्टिविटी। या फिर उसका कितना एज हो सकता है, कब तक ये चलेगा, कब तक इरोड नहीं होगा। ठीक है, ये होगा। देन स्ट्रक्चर, मेन इसमें आता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे सपोज मान लो कि हम कोई भी मटेरियल को हाथ में ले रहे हैं अपने, ठीक है, उसको मेजर कर रहे हैं, तो उसका मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स उसका शेप साइज कितना है, और वो अगर उसको मैं रफ करूं तो वो कटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कट रहा है तो मीन्स इसका जो है क्या बोलते हैं,
एरोजन हो रहा है, धीरे धीरे एरोजन हो रहा है, तो इस उसका लाइफ मीन्स घटता जा रहा है उस मटेरियल का। सपोज मान लो कि एक मैं सॉइल सैंपल ले रहा हूँ, सॉइल सैंपल, ठीक है, तो सॉइल सैंपल में ले रहा हूँ तो उसको देख रहा हूँ कि अगर उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर है, अगर 10% में मॉइस्चर है तो क्या होगा, वो ठंडा लगेगा कि गर्म लगेगा? हेलो, सर ठंडा लगेगा। हल्का ठंडा लगेगा। अगर मैं एकदम नॉर्मल प्लेस पे हूँ, तो अगर नॉर्मल प्लेस पे हूँ मीन्स वहां पे ना ज्यादा गर्मी है ना ठंडा है, ठीक है, तो क्या लगेगा, हल्का सा नम रहेगा, मीन्स ठंडा रहेगा अगर नम रहेगा तो, ठीक है। या फिर मैं किसी अगर रॉक को लूँ, ठीक है, उसमें अगर क्रैक्स नहीं है, इम्प्योरिटीज नहीं है, तो मीन्स बहुत टफ रहेगा। अभी तुम लोग देखे होगे रेलवे लाइन के किनारे जो तुम्हारा ब्रिक मीन्स बैट्स होते हैं, रॉक बैट्स, वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं? हार्ड सर। बहुत हार्ड हार्ड होते सर, हैं, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। वेरी मीन्स उनको इसीलिए वहां पे यूज करते हैं कि वो उसका बेयरिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा, ठीक है। वो अगर आपस में उसको तुम तोड़ोगे तब भी टूटता नहीं है बहुत जल्दी से, बहुत हाई होता है। मीन्स उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। सपोज मान लो कि अगर मैं अर्थ के नीचे जा रहा हूँ और मैं जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स तक तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी डिस्टर्ब करेगा तो हम लोग का क्या होगा, बहुत नुकसान होगा, मीन्स बहुत हार्म पहुंचाएगा वो, उसका वाइब्रेशन। जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ जाएगा उससे, ठीक है। इन सबको रोकने के लिए हम लोग ज्यादा वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। देखते हो कि बहुत मीन्स कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो वहां पर बिल्डिंग को तोड़ने के लिए या फिर रॉक को तोड़ने के लिए बहुत सारा मशीन का यूज करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वो सब यूज नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए यूज करने से, ठीक है। या फिर बहुत सारा हम लोग वॉइस पॉल्यूशन भी करते हैं, उससे भी हमारा डिस्टरबेंस होता है, उसको भी कम करना चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग केमिकल का यूज करते हैं और उसको ऐसे ही फ्लो कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, उससे क्या होता है, हमारा जो सॉइल है वो क्या है, वो खराब कंटामिनेट हो गया, कंटामिनेट मीन्स खराब हो जा रहा है धीरे धीरे। तो खराब होके क्या होगा, जो भी वो केमिकल है नीचे जा रहा है, ठीक है। जब नीचे जा रहा है तो नीचे जो हमारी लेयर्स हैं, कुछ भी 10 मीटर्स के नीचे या फिर 100 मीटर नीचे, वो धीरे धीरे क्या होगा, इरोड हो रही है। अब इरोड हो रही तो क्या होगा, हमारा जितना भी हमारा ये पेड़ पौधा सब पनप रहा है, क्या होगा, ये खराब होने लगेगा धीरे धीरे, वहां का मिट्टी जो है तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग को केमिकल का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेन तुम्हारा अगर अर्थ के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं तो वाइब्रेट नहीं होना चाहिए ज्यादा कुछ, ठीक है। अगर वाइब्रेट होगा तो तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होता जाएगा। सर। हम्म। सर हैवी लोड व्हीकल्स जो चलते हैं स्पीड में, सर हाँ उससे भी तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है सर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे सपोज मान लो कि लोडिंग अगर ज्यादा है, लोडिंग ज्यादा है या फिर वाइब्रेट हो रहा है कुछ भी, तो वाइब्रेशन मेन कॉज है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो उससे हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर बहुत ही सेफ रहेगा, ठीक है। सपोज मान लो अगर हमें 4 लेन रोड बना हुआ है, 4 लेन रोड बना हुआ है और उस पर तुम 24 व्हील्स का एक व्हीकल चला दिए, ठीक है, उस पे क्या होगा, अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर ज्यादा टफ या मजबूत है तभी वो बियर कर पाएगा उस व्हीकल को, अदरवाइज क्या करेगा, फेल कर जाएगा। उस फेलियर को रोकने के लिए और इस स्ट्रक्चर को अच्छा रहने के लिए हम लोग को क्या है, लाइट व्हीकल यूज करना है और पार्ट पार्ट में यूज करना है। अभी देख लो इतना हैवी हैवी व्हीकल चलता है कि तुम समझ नहीं सकते हो क्या मीन्स। जैसे चिमनी नहीं होता, किल्न, उसको भी उठा उठा के ले जाता है। घर है तुम्हारा, पूरा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी उठा के ले जा सकता है। उससे क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस पहुंच हमारा ग्राउंड के नीचे, ठीक है। ये सब चीज, तो सर वैसा कुछ रूल होगा ना सर ये सब रोकने के लिए, हाँ, मतलब? इसका परमिशन होता है, ठीक है। आईआरसी ने एक परमिशन निकाला है, इंडियन रोड कांग्रेस ने, इसका एक परमिशन भी होता है कि पहले तुम अगर ले जा रहे हो तो उससे परमिट लेना पड़ेगा। जैसे गाड़ी का नहीं परमिट बनता है, उसी तरह से परमिट
तुम इतना हैवी वेट ले जा सकते हो। या फिर तुम लोग अगर चले होगे तो देखते हो जो 4 लाइन 6 लाइन जो रोड होता है वहां पर चेकिंग भी रहता है कि तुम हैवी वेट इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते हो। कभी चेक हुआ है, देखे हो कभी? यस सर सर। ज्यादातर सर टोल के पास ऐसा देखे हैं सर। हाँ, टोल के पास होता है। सपोज अगर यहाँ पे तुम लोग गए होगे कभी, कहाँ पे है, औरंगाबाद साइड में, बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, जो तुम्हारा कहाँ से है मुझे सही से याद नहीं आ रहा। बरही नाम सुने हो सभी लोग? फिर से बोलिए सर। बरही है ना, वहां पे नो एक सर। 4 लाइन या 6 लाइन रोड है जो तुम्हारा इलाहाबाद जाती है यूपी में, उधर है। उसके बाद ये कोलकाता साइड में रोड है। इस पे बहुत जगह चेक होता है, ठीक है, कि हैवी वेट तो नहीं ले जा रहे हो या फिर ओवरलोडिंग नहीं किए हो। क्योंकि उस रोड पे अगर चल रहे हो उस व्हीकल का कैपेसिटी से ज्यादा अगर तुम भर लोगे तो क्या होगा, उसका व्हील जो है व्हील डिस्टर्ब करेगा रोड को। तो उसको डिस्टरबेंस को रोकने के लिए ही आईआरसी ने क्या किया है, रूल बनाए हैं बहुत सारे कि तुम इतना सामान ले, इतना ही वेट का ले जा सकते हो, इससे ज्यादा वेट नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, और और कोई सर क्वेश्चन? रेलवेज में सर? रेलवे रेलवे तो हमेशा रेलवेज अपना ही, रेलवे तो अपना ही रूल लगाता है, ठीक है। वो क्या करता है उसमें, अगर तुम्हारा ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी में तो वो अपना वेट से ही ले जाता है कि उससे ज्यादा तो हैवी भरेगा नहीं वो। बट हाँ, पैसेंजर गाड़ी का बात है, पैसेंजर गाड़ी क्या होता है, उसमें ओवरलोडिंग कर देता है। तो ओवरलोडिंग क्यों करता है, क्योंकि उसका कैपेसिटी है उतना। अब रूल के हिसाब से देखा जाए तो टिकट बहुत कम बना हुआ है, पैसेंजर ज्यादा बढ़ गया है, तो ये तो रूल के बाहर हो गए, ठीक है। तो ये रूल उस पे रेलवे खुद अपना देखता है, उसका खुद का अपना अथॉरिटी है, तो उसमें ओवरलोडिंग नहीं होता है। अब ये एक मालगाड़ी है, ठीक है, जो भी सामान ढो रहा है, मैक्सिमम कितना बोगी लगा सकता है, याद है किसी को? 50 to 60 सर। 50 to 60 एग्जैक्ट किसी को मालूम है? सर 50 to 60 वैगन्स। और किसी को एग्जैक्ट मालूम है? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करा रहा हूँ तुम लोग को 1 मिनट बाद, तो उसमें मैं बताता हूँ। तब तक तुम लोग अपना अगर याद है तो बताओ। एक इंडियन रेलवे का रूल है कि इससे ज्यादा बोगी नहीं लगा सकता वो। 58 सर। हेलो, हेलो।